Hello students, today we will be dealing with a very important topic of biology, which is origin and evolution of life. So right at the outset, let me tell you that it is a metaphysical concept. Metaphysical concept is something where we do not have a conclusive evidence of. Life originated on earth billions of years ago. It was a one-time phenomena. There is no way that we could recreate the conditions that would have been present at that particular time. So what we will be thinking here, what we will be discussing here, the best available evidence that we can put forth for the evolution of life. तो शुरू में हमें ये समझना है कि ये टॉपिक बड़ा मेटाफिजिकल है, इसके लिए हमारे पास कोई बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंसेस पे जो हम हाइपोथेसिस प्रेजेंट करेंगे कि अर्थ पे पहली लाइफ किस तरह से बनी. नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ, देयर आर सो मेनी थ्योरीज अवेलेबल. तो पहला जो थ्योरी है दैट इज डिवाइन क्रिएशन. The proponents of this theory say that life was created by omnipotent, omnipresent God. God ने अपनी imitation में human being को बनाया, life को create किया. And please understand, because this topic is outside the realm of the science, we cannot design an experiment to prove or disprove this particular fact. So therefore many people continue to believe in this. The second theory that came was origin of life by spontaneous generation. Now we will deal a little bit about this theory. देखिए, इन लोगों ने ये कहा कि life originates from non-living things. Now what these non-living things, they contain what is called as an active principle, and this active principle, if it is provided with right environment, it will produce life. तो हम ये कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के प्रोपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि लाइफ नॉन लिविंग चीज़ों से बनती है. इन नॉन लिविंग चीज़ों में एक एक्टिव प्रिंसिपल है. अगर आप इस एक्टिव प्रिंसिपल को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो लाइफ बन जाएगी. लेकिन अभी क्योंकि हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. देयर वर सम साइंटिस्ट, यू कैन रिकॉर्ड द नेम ऑफ दीज साइंटिस्ट. वन वाज फ्रांसिस्को रेड्डी, इट वाज फॉलोड बाय स्प्लांजानी, and ultimately by Louis Pasteur. These scientists, by a series of experiments, actually disproved this theory, and Louis Pasteur actually said that life originates from pre-existing life. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई. एक थ्योरी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, इसको फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लांजानी और लुइस पास्चर ने डिस्प्रूव किया. उन्होंने कहा कि लाइफ नॉन लिविंग चीज़ों से नहीं बनती है, लाइफ बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. अब हम बात करेंगे उस थ्योरी की, अपने नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसे साइंटिफिक वर्ड में सबसे ज़्यादा माना जाता है. दिस इज ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय बायोकेमिकल इवोल्यूशन. सो our main point of discussion would be biochemical evolution. This is the hypothesis that is most acceptable in the scientific world. Again, I am saying many people in the world actually believe divine creation. Since we could not devise an experiment to prove or disprove the existence of God, therefore that particular theory was outside the realm of science and people continue to believe it. लेकिन अब हम बात उस थ्योरी की कर रहे हैं या उस हाइपोथेसिस की कर रहे हैं जो कि साइंटिफिक वर्ड में सबसे ज़्यादा माना जाता है, दैट इज बायोकेमिकल इवोल्यूशन. इट वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर ओपरिन and significant contributions were by J.B.S. Haldane, and therefore it is also called as an Oparin-Haldane hypothesis. तो इस थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इन्होंने ये कहा कि द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स. Now please understand the difference between biochemical evolution and the spontaneous generation. Spontaneous generation में उन्होंने ये कहा था कि life originates from non-living thing, इसलिए आज भी हो सकती है. लेकिन ओपरिन और हाल्डेन केवल ये कह रहे हैं कि अर्थ पे जो पहली लाइफ बनी थी वो बायोकेमिकल इवोल्यूशन, वो नॉन लिविंग केमिकल से बनी थी. और दो इवोल्यूशन हुए. पहले इनऑर्गेनिक केमिकल्स इवॉल्व होकर के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इवॉल्व हुए, और उसके बाद में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहला सेल इवॉल्व हुआ जिसे हम प्रोटोसेल कहेंगे. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि लाइफ ओरिजिनेट में दो प्रोसेसेस हुए. पहले इनऑर्गेनिक केमिकल्स इवॉल्व हुए ऑर्गेनिक केमिकल्स में, और ऑर्गेनिक केमिकल्स इवॉल्व हुए पहले सेल में. नाउ टू गिव दिस कंसेप्ट
Operin had a very very important argument. He said that the primeval earth atmosphere was strikingly different from today's atmosphere. आज का जो एटमॉस्फेयर है that is oxidizing, that is oxidizing. Oxidizing का मतलब ये हुआ कि इसमें फ्री ऑक्सीजन है in the form of oxygen gas as well as ozone. और ओपरिन ने ये कहा था कि ऐसे माहौल में, इस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में पहले सेल नहीं बन सकता, क्योंकि फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल्स इट वाज इंपॉर्टेंट दैट द एनवायरनमेंट वाज नॉट ऑक्सीडाइजिंग. रादर देन ही सेड दैट द प्राइमेवल अर्थ एटमॉस्फेयर मस्ट हैव बीन रिड्यूसिंग इन नेचर. क्योंकि ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग नेचर रिक्वायरमेंट थी ताकि ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इनकी स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि लाइफ एक दिन में ओरिजिनेट नहीं हुई होगी. ये ऑर्गेनिक केमिकल्स इवॉल्व होकर जब प्रोटोसेल बनाएंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और उस टाइम पर इन ऑर्गेनिक केमिकल्स की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये था कि एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन ना हो. तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर आपने ये कहा दिया कि पहला जो एटमॉस्फेयर था, जो प्राइमेवल एटमॉस्फेयर था, वो आज के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग था, तो क्या आपके पास कोई इस तरह का एविडेंस था? अगर हम उस टाइम के रॉक्स को स्टडी करें, जब हम ये कह रहे हैं कि अर्थ पर पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तो इसमें हमें फेरस आयरन वाले ओर मिलेंगे. नाउ दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ Fe2+, जो कि बाद के रॉक्स में नहीं मिलता. बाद के रॉक्स में जो आयरन के ओर्स मिलते हैं दैट कंटेन्स फेरिक आयरन, एंड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. सो दिस वाज द एविडेंस दैट ओपरिन वाज लुकिंग फॉर. फिर उसको दूसरी बात ये बतानी थी कि इस प्राइमेवल अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो कौन सी गैसेज थी. देन ही सेड कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, एंड ही सेड दैट देयर मस्ट हैव बीन हाइड्रोजन. मैं बात कर रहा हूँ ओपरिन के हाइपोथेसिस की. ओपरिन ने अपने प्राइमेवल एटमॉस्फेयर में जो गैसेस बताया वो मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन. अब इस हाइड्रोजन की वजह से एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग हो गया और यहाँ से फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गायब है. लेकिन आप ध्यान रखिए वाटर वेपर प्रेजेंट है. जितना भी वाटर होगा वो वेपर फॉर्म में होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो टेम्परेचर था दैट वाज हाई. द बिगिनिंग ऑफ अर्थ वाज वेरी टर्बुलेंट. उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत हाई था. यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस थे, एंड बिकॉज ओजोन नहीं प्रेजेंट थी तो यूवी रेडिएशंस वर ट्रेवर्सिंग द एटमॉस्फेयर एंड देयर वाज फ्रीक्वेंट लाइटनिंग. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस वाज अ वेरी टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द प्राइमेवल अर्थ. फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन है नहीं. उन्होंने ये कहा कि मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर है और हाइड्रोजन है, और वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है बहुत टर्बुलेंट है, टेम्परेचर बहुत हाई है, वॉल्केनिक इरप्शंस है फ्रीक्वेंट, यूवी रेडिएशंस फ्रीक्वेंटली पास हो रही हैं और लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा है. दैट मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर दीज केमिकल्स टू रिएक्ट अमंग्स देमसेल्व्स, एंड इट मे हैपन दैट दीज केमिकल्स दे मे रिएक्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द source of energy as well. These can produce simple organic compounds. तो पहला तो प्रपोजिशन ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो प्रेजेंट हैं इनको काफ़ी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, तो इन्होंने आपस में रिएक्ट करके बड़े सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे. सो द फर्स्ट स्टेप वाज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक वी विल से मोनोमर्स. एंड बिलीव एंड ध्यान दीजिए कि ये कहाँ पर बन रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं. और उसके बाद में जब अर्थ ग्रेजुअली कूल हुई होगी तो ये वाटर वेपर कंडेंस हुआ होगा, एंड बिकॉज द वाटर वेपर गॉट कंडेंस्ड इट वुड हैव ब्रॉट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब ये रेन अर्थ के सरफेस पे आई होगी तो अपने साथ ये छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेकर के अर्थ के सरफेस पे आई होगी. इट वुड हैव टेकन सम मिनरल्स बिकॉज इट वुड हैव वॉश्ड दीज मिनरल्स ऑफ द रॉक्स, और जाकर के जब ये पानी बहना शुरू हुआ होगा तो अर्थ में जहाँ पर भी डिप्रेशन होगा, जहाँ पर भी गड्ढा होगा, वहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो गया होगा, और दैट वुड हैव बीन द क्रिएशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्राइमेवल हॉट डाइल्यूट सूप. हॉट डाइल्यूट सूप, और इसको हम हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप भी बोलते हैं. एंड द स्टेज वाज सेट फॉर द फर्दर ओरिजिन ऑफ द लाइफ.
तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि लाइफ बनाने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी वाज इजीली अवेलेबल। तो इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनाए होंगे, और ये मोनोमर्स जब रेन के साथ में अर्थ के सरफेस पे आए होंगे तो वहाँ से मिनरल साथ में कलेक्ट किया होगा, और ये बहता हुआ पानी एक जगह इकट्ठा हो गया होगा जहाँ पर भी अर्थ पर डिप्रेशन था, एंड दैट वुड हैव led to the creation of the Haldane's hot dilute soup। और ये वो जगह है जहाँ पर फर्दर रिएक्शंस होंगे फर्स्ट प्रोटोसेल बनने के लिए। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रपोजिशन ऑफ ओपरेन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस। तो हमने देखा कि किस तरह से प्राइमेवल हॉट डाइल्यूट सूप बना, और इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर्स आ गए। इन ऑर्गेनिक मोनोमर्स में शुगर्स होंगी, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होंगे, और इनको लैब में प्रूव किया स्टैनले, मिलर एंड यूरे। इन दो साइंटिस्ट ने अपनी लैब में वो कंडीशन सिमुलेट करी जो ओपरेन कह रहा था कि प्राइमेवल अर्थ के टाइम पर थी, और दे प्रूव्ड दैट एक्चुअली द ऑर्गेनिक मोनोमर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो पहला स्टेप तो हमारे को समझ में आ गया कि किस तरह से जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे उन्होंने आपस में रिएक्ट करके छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर्स बना दिए। ये पहला स्टेप हमारे को एब्सोल्युटली अब क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द ओपरेन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस फर्दर डाउन। इसके बाद क्या हुआ? ये जो ऑर्गेनिक मोनोमर्स थे ये इस हॉट डाइल्यूट सूप में इकट्ठे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मोनोमर्स, जब भी रेन ऊपर से नीचे आएगी तो साथ में ऑर्गेनिक मोनोमर्स लेके आएगी, और ये ऑर्गेनिक मोनोमर्स इस वाटर बॉडी में इकट्ठे होते चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमने शुरू में ये लिखा कि ये एक डाइल्यूट सूप है, और डाइल्यूट सूप में ये जो ऑर्गेनिक मोनोमर्स हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है जिसमें ऑर्गेनिक मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके बनाए पॉलीमर्स, उसके होने के लिए एक छोटी सी चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है कि ये मोनोमर्स पास आ जाए, और हमें इस डाइल्यूट सूप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती थी विद द बिगिनिंग ऑफ द वाटर साइकिल। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, जब वाटर यहाँ से इवेपोरेट होगा तो जब पानी ऊपर जाएगा तो साथ में मोनोमर लेके नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो मोनोमर लेके आएगा, और धीरे धीरे ये डाइल्यूट सूप कुछ जगह पर कंसंट्रेट हो गया, और कंसंट्रेट होने के बाद में ये रिएक्टेंट्स मौजूद थे, ऑर्गेनिक मोनोमर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया था, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शंस, लाइटनिंग एट्सेट्रा, और उन ऑर्गेनिक मोनोमर्स ने मिलकर क्या बना दिए होंगे? पॉलीमर्स। इस चीज़ को हम लैब में भी करके देख सकते हैं। मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वी कैन क्रिएट ऑर्गेनिक मोनोमर्स, देन वी कैन डू व्हाट कि हम इन ऑर्गेनिक मोनोमर्स को एनर्जी प्रोवाइड करके इनको आपस में जोड़ के क्या बना सकते हैं? पॉलीमर्स बना सकते हैं। तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि ये मोनोमर्स इवॉल्व हुए पॉलीमर्स में। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन पॉलीमर्स को आपस में रिएक्ट करना था। लाइपोपॉलीसेकेराइड बनने चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन बनने चाहिए। केवल पॉलीमर बनने से तो एक प्रोटोसेल नहीं बनेगा। तो हम ये करेंगे कि हम इन पॉलीमर्स को आपस में जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई मीनिंगफुल चीज़ बनती है कि नहीं बनती है। और इन पॉलीमर्स के जुड़ने से जो स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट्स बने, स्फेरिकल इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पॉलीमर्स एम्फीपैथिक होंगे। खास तौर पे मैं प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ। तो जब वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एक एंड जो हाइड्रोफिलिक है, दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक है, तो वो अपने आप को एक स्फीयर में ऑर्गेनाइज करेगा। बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड्स आ जाएंगे और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक आ जाएंगे, और वो एनवायरनमेंट से अपने आप को पार्शियली आइसोलेट कर पाएगा, ये हम जानते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट्स बनेंगे पॉलीमर्स को जोड़ के, इनको अब हम कहेंगे प्रोटोबायंट्स। So the next step would be the joining of the polymers with one another and formation of the protobiont। और फिर वो प्रोटोबायंट जो कि कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम ये मान लेंगे कि वो पहला या वो प्रीकर्सर होगा पहले सेल का। और वो प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो प्रोटोबायंट जिसे हम ये कहेंगे कि जिसने पहला सेल बनाया होगा, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करे। नंबर 2, इट मस्ट बी एबल टू अचीव अ पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट से अपने आप को पार्शियली आइसोलेट करे। नंबर 3, देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ ट्रांसड्यूसिंग एनर्जी
And number 4, there must be scope of slow changes. स्लो चेंजेस जिसे हम बाद में म्यूटेशंस कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें केवल लाइफ का ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें लाइफ की डाइवर्सिटी को भी एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जो भी प्रोटोबायंट हम बनाएंगे और जो प्रोटोबायंट इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एज अ प्रीकर्सर ऑफ द प्रोटोसेल। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड। दो प्रोटोबायंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिजर्व करते हैं मेंशन। एक जो ओपरन ने बनाया उसे हम कहते हैं कोएसरवेट। नाउ दिस कोएसरवेट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड। प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड, ये एक स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट ओपरन ने खुद बनाया, इसको हम कोएसरवेट कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड का, लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली कि इसने रेप्लिकेट नहीं किया लैब कंडीशंस में। नंबर 2, इसके चारों तरफ लिपिड की बाइलेयर नहीं आई। Now please understand, this particular protobiont was not satisfying two very important preconditions to be a precursor of life. It could not replicate and there was no mechanism by which he could have added a lipid bilayer around it. So therefore, what conclusion do we derive? That coeservates alone cannot be the precursor of the protocell. कोएसरवेट अकेले वो चीज़ नहीं हो सकते जिन्होंने पहला सेल बनाया होगा। The other protobiont that deserves mention is a microsphere. This was actually created by Sidney Fox. Sidney Fox ने जो प्रोटोबायंट बनाया इसको हम माइक्रोस्फीयर कहते हैं। इसने ड्राई हीट किया अमीनो एसिड्स को। सबसे पहले उसने ड्राई हीट किया अमीनो एसिड को, फिर उनको ग्रेजुअली कूल किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उसके पास जो प्रोटीनॉइड मिक्सचर बन गया उसको उसने माइक्रोस्फीयर कहा। सो दिस वाज एन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोटोबायंट दैट वाज फॉर्म बिकॉज दिस माइक्रोस्फीयर शोड एलिमेंट्री मेटाबॉलिज्म एंड इट एग्जिबिटेड ग्रोथ and actually some kinking also appeared in the periphery that looked like the beginning of the binary fission. पर इसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, it had very limited diversity. इसमें बहुत लिमिटेड डाइवर्सिटी थी। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोबायंट्स डिजर्व करते हैं, एक कोएसरवेट और दूसरा माइक्रोस्फीयर, लेकिन दोनों पूरी की पूरी प्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो हमने ये कहा कि कोएसरवेट या माइक्रोस्फीयर अकेले वो चीज़ नहीं हो सकते जो कि लाइफ को ओरिजिनेट करेंगे या पहला प्रोटोसेल बनाएंगे। सो ओपरन कुड टेल ओनली अप टू दिस। इसके बाद में जो धीरे धीरे और हमारी साइंस में नॉलेज बढ़ती गई, वी केम टू नो अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। कुछ दिनों में हमें पता चला कि एक्चुअल रेप्लिकेटर्स आर न्यूक्लिक एसिड्स, और हम रेप्लिकेटर्स को ढूंढ रहे थे प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स और फैट्स में। दे विल नेवर रेप्लिकेट। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यू लाइट, this new knowledge, now people came to know that some of the protobiont must have been taken over by the nucleic acids. इनको टेक ओवर किया होगा न्यूक्लिक एसिड्स ने, और ये वो प्रोटोबायंट्स होंगे जिन्होंने पहला सेल बनाया होगा। ऐसे प्रोटोबायंट जिनके चारों तरफ लिपिड की लेयर भी आ सकती है, जिनमें डाइवर्सिटी भी हो, एंड दे आर टेकन ओवर बाय द न्यूक्लिक एसिड बिकॉज वी नो इट इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट एक्चुअली लीड्स टू द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल, एंड देयरफॉर दीज प्रोटोबायंट्स मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड एंड दे वुड हैव बीन द प्रीकर्सर ऑफ द लाइफ। Now there was another issue that was left. Another issue that was left was that how the central dogma of molecular biology got established in the living world. Living cell में central dogma of molecular biology कैसे establish हुआ? एक मिनट ध्यान दीजिए। इसमें हमने ये कहा कि डीएनए के टेम्पलेट पे हम एक मैसेज बनाते हैं, इसको हम कहते हैं RNA, and let me write mRNA for this. So this is a copying of a message on the template of the DNA into an RNA molecule. This process is called as transcription, and the language of the RNA is translated into the language of amino acids, which is called as protein, and this step is called as translation. And this is the basic schema of the central dogma of molecular biology as proposed by Crick.
तो क्रिक के हिसाब से डीएनए की टेम्पलेट पे हम आरएनए बनाते हैं, क्योंकि डीएनए की लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड से लिखी है, आरएनए की लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड से लिखी है, बिकॉज द लैंग्वेज रिमेन सेम, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्ट। और क्योंकि हम आरएनए की लैंग्वेज जो कि न्यूक्लियोटाइड से लिखी है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स की लैंग्वेज में, विच इज रिटन विद द अमीनो एसिड्स, एंड सिंस द लैंग्वेज चेंजेस दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज जैसी चीज़ चाहिए, और डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, और एंजाइम ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि डीएनए को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए चाहिए। दिस इज़ वेरी फेमसली कॉल्ड एज द एग एंड चिकन प्रॉब्लम, द एग एंड चिकन पैराडॉक्स। मुर्गी पहले कि अंडा पहले? तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि सेल में पहली चीज़ क्या इवॉल्व हुई, डीएनए या प्रोटीन्स? लेकिन कुछ सालों बाद टेमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस and reverse transcription. So they discovered the process of reverse transcription. Reverse transcription means that on the template of RNA you can form the complementary DNA. इसका मतलब DNA की RNA की टेम्पलेट पे हम क्या बना सकते हैं, DNA। खास तौर पे ये प्रॉपर्टी होती है rRNA के पास में, और इसमें जो हमें एंजाइम चाहिए जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, वो एंजाइम आरएनए की टेम्पलेट पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डीएनए की टेम्पलेट पे ही आरएनए बने, आरएनए की टेम्पलेट पर ही डीएनए बन सकता है। एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी लेट इन द 20th century was because of Thomas Sech. This person discovered what are called as ribozymes, and these ribozymes are ribonucleoproteins, and they have catalytic function, and they are rRNA molecules. They are normally rRNA molecules. तो आप ध्यान दीजिए, इस एग और चिकन पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए हमारा ध्यान इस मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है, आरएनए की तरफ। आरएनए की टेम्पलेट पर हम डीएनए बना सकते हैं, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कैटालिसिस भी कौन कर सकता है, आरएनए कर सकता है। नाउ द थिंग वाज प्रीटी क्लियर दैट इट इज एन आरएनए वर्ड। The first life was based on RNA. RNA वो मॉलिक्यूल था जो कि पहला जेनेटिक मटेरियल था लाइफ का। इसके अराउंड सारी की सारी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इवॉल्व हुई है, और सबसे पहले बना आरएनए की टेम्पलेट पे बनाया गया डीएनए की टेम्पलेट पे फिर मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स बनने शुरू हुए, और सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एस्टैब्लिश हो गया। क्योंकि हम जानते हैं डीएनए इज अ बेटर मॉलिक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देन आरएनए। सो वंस डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, दिस फंक्शन was given to DNA, and since proteins are better catalysts than RNA, and this function from RNA was taken over by the proteins, and the central dogma of molecular biology got established. This is how the first cell or the protocell was formed. एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। एटमॉस्फेयर में इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे, सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। इन केमिकल्स ने रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनाए, रेन के साथ ये अर्थ पर आए। इन्होंने एक हाल्डेन हॉट डाइल्यूट सूप बनाया, वो हॉट डाइल्यूट सूप थोड़ा सा कंसनट्रेट हुआ, और इन मोनोमर्स ने आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर्स बनाए। पॉलीमर्स ने आपस में मिल करके एक स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट्स बनाए, प्रोटोबायंट्स। किसी प्रोटोबायंट को टेक ओवर कर लिया होगा न्यूक्लिक एसिड ने, और वो पहला सेल का प्रीकर्सर बनेगा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एस्टैब्लिश करने में हम ये समझ गए हैं कि अर्थ पे जो पहली लाइफ जो थी उसका जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। आरएनए की टेम्पलेट पे आप डीएनए भी बना सकते हैं, और आरएनए का कैटालिटिक फंक्शन भी है। तो जो पहला सेल बना होगा दैट वुड हैव बीन कीमो हेट्रोट्रॉफ। दिस इज वेरी लॉजिकल। पहला जो सेल बना होगा उसमें बहुत एलिमेंट्री मेटाबॉलिज्म हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट मस्ट हैव बीन कीमो हेट्रोट्रॉफ। ग्रेजुअली these will evolve which is called as कीमो-ऑटोट्रॉफ्स। कीमो-सिंथेटिक बैक्टीरिया आया होगा, और ये मैं एक बार आपको याद दिला दूं, ये कीमो हेट्रोट्रॉफ वही बैक्टीरिया है जो आज भी जिंदा है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और वही सबसे पहले अर्थ पर आया था। उसके बाद आए होंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और ग्रेजुअली आए होंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। So gradually arose what are called as photosynthetic autotrophs.
और जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे दे वर साइनोबैक्टीरिया. यू नो दैट साइनोबैक्टीरिया आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. तो आप मेटाबॉलिज्म का इवोल्यूशन देखिए. सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रॉफ्स जो आज के हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स और उसके बाद फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में पहले एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हुआ होगा एंड ग्रेजुअली इट वुड हैव गिवन राइज टू द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ऑन अर्थ वाज स्टार्टेड बाय द साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी. अब थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि जैसे ही फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हुए होंगे तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जब शुरू हुआ होगा तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का जो साइड प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, दैट इज ऑक्सीजन. और अब ये ऑक्सीजन जो अर्थ का जो प्राइमेवल एटमॉस्फेयर था जो कि अब तक रिड्यूसिंग था उसको ऑक्सीडाइजिंग में चेंज करेगी, क्योंकि अब आएगा ऑक्सीजन और ओजोन. और अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली कम होना शुरू होंगे. लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब ओजोन आ जाएगी तो यूवी रेडिएशन आनी कम हो जाएगी, तो उस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ सकती है. लेकिन एनवायरनमेंट में एक पहला सेलेक्टिव एजेंट आ गया, ऑक्सीजन. अब कुछ लाइफ फॉर्म्स बचेंगी, कुछ लाइफ फॉर्म्स नहीं बचेंगी. एंड दिस इज हाउ द नेक्स्ट थिंग स्टार्टेड. दैट मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ स्टार्टेड एंड द लाइफ प्रोग्रेस towards its immaculate and extensive diversity on earth. Thank you.